Good morning, sir. Yes, good morning. Good morning to everyone and Merry Christmas to everyone. Yes, so basically the first point that we will focus is that is what is the composition of the exam is. Clear? So how many basically 4 links will be there? In first link we will have 23 MCQ questions. Clear? For 1 marks we will be having 23 questions in the link 1. Clear? Then comes to the link 2. So in link 2 there will be 12 questions will be there, and you have to attempt 10 questions out of those. So that will be of 20 marks. So you can note down this also. First link will be of 23 marks, 1 marks each. उसमें कोई choice नहीं है उसके अंदर. The second link will be of 20 marks. उसमें 12 questions होंगे and you have to attempt 10 questions, any 10 questions over there. So there will be a choice of 2 questions. Then there will be link 3. So there will be 3 marks questions. 4 questions will be there, and you have to attempt 3 questions. Last is the long answer type questions. So 4 questions will be there and you have to attempt any 3 questions over there. Clear? So I think Mehak is counting, so I will check it out from Mehak. Yes, बताओ Mehak कितना हो गया, total कितना हो गया? What is the total? Sir, 70. 70 हो गया, ठीक है. So MCQ हो गया 23 और descriptive हो गया हमारे पास, that will be of 47 marks. Plus 2 में भी ऐसी है, same composition is there, and this sort of paper you will have. Now next is आप कोई भी आपका जो main point है, because in revision आप बता दो, अपना idea बता दो, the topic that you want to be discussed. क्योंकि अगर हम ऐसे पढ़ाने शुरू कर देंगे तो that will I will start from the scratch and so many topics will be of no use to anyone. हाँ जैस्मीन आप बताओ. जैस्मीन और गुनवीर से पूछेंगे because they have joined the classes a bit late. Yes, कोई topic है? Topic you want to be revised? No, sir. So Jasmine, anything of your choice you can discuss. Okay. Yes, Gunveer आप बताओ. Anything, sir. Anything यार, anything तो मैं करवा ही दूंगा आप लोगों की. Yes, अमरवीर आप बताओ. Any topic of your choice. सर मेनली जैसे हमें कुछ मेन टर्म्स थ्योरी करवा दो आज, क्योंकि प्रैक्टिकल के टॉपिक्स अगर हम लूप्स वगैरह पढ़ने लग गए कि कौन से लूप से क्या सिंटेक्स से क्या बनेगा, वो बहुत डिटेल में चल जाएगा. ठीक है. एक तो मैं आपको मोटा लॉजिक ये बता दूं कि आप लोगों ने बेसिकली व्हेन देयर इज अ 1 डे सॉर्ट ऑफ इट, तो आप जो मैंने पीपीटी डिस्कस की हुई है आप लोगों के साथ, सो गो थ्रू दोस पीपीटीज ओनली. So that is a very good resource. So I will just share the screen. ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट से शुरू किया है मैंने, and I hope that this screen is everyone is able to view this screen. Okay, so I will just discuss the main points. So in control statements, view हो रही है ये विंडो आप लोगों को? Okay,
So basically control statements are divided into three parts, decision making statements. और पहले ये है कि जो मेन पॉइंट है that is you see at the bottom line. अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास ये PPTs भी अवेलेबल नहीं होंगी. So this link is available python.mykvs.in. So my humble request is कि इस वेबसाइट के ऊपर +1 का भी रिसोर्स पड़ा हुआ है एंड समवन, जैसे जब भी आप लोगों की +1 खत्म हो जाती है एंड यू हैव ए क्यूरियोसिटी फॉर +2 आल्सो कि +2 में क्या है, सो यू कैन यूज द सेम वेबसाइट और उसके अंदर नीचे ऊपर +1 वाले टॉपिक्स दिए हुए हैं, नीचे +2 वाले टॉपिक्स भी दिए हुए हैं. सो यू कैन एट एनी टाइम you wish to look at the +2 things, you can look at that also. So first we have decision making statements, then we have iteration statements, and then we have jumping statements. So these are the three parts of a control statements. मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे, जैसे आप +2 में प्रोजेक्ट बनाने जाओगे तो जंप कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्लेज ए मोस्ट क्रूशियल पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट. तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स करती क्या है, बेसिकली सारे प्रोग्राम में जो कंट्रोल का फ्लो कंट्रोल हो रहा है उसको कंट्रोल करती है, मींस दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. सो लुकिंग एट द फर्स्ट वी हैव ए सिंपल, सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है दैट इज सिंपल इफ स्टेटमेंट. तो जब भी आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है कोई भी स्टेटमेंट, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज प्लीज लुक एट दी दिस फ्लो चार्ट आल्सो, क्योंकि फ्लो चार्ट से हमें आइडिया माइंड में क्लियर हो जाता है कि कैसे इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन हो रही है. सो फर्स्ट वी हैव ए स्टार्ट व्हेन द कंट्रोल कम्स इनटू द कंट्रोल बॉक्स, दिस डिसीजन मेकिंग बॉक्स. दिस बॉक्स इज बेसिकली आल्सो कॉल्ड द डिसीजन मेकिंग बॉक्स, डायमंड बॉक्स भी बोलते हैं इसको हम, और मैथमेटिकली दिस इज ए रोम्बस. क्लियर? तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगी, मींस कंडीशन विल बी चेक्ड देयर. तो कंडीशन के दो पार्ट होंगे, आइदर द कंडीशन विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स. तो ट्रू है तो ये ट्रू का ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है सो देन दिस ब्लॉक विल बी स्किप्ड. सो दिस इज द सिंपल इफ स्टेटमेंट जिसके अंदर सिर्फ ट्रू ब्लॉक है हमारे पास. ठीक है जी. So this is the example is given here. ठीक है. I will not go. This is the simplest of the example we have. Now we move to the if else statements. तो if else के अंदर क्या है? If else के अंदर we have two blocks. We have one is the true block and second is the else block. Yes. कोई example दे सकते हो true if else block की? If else block की कोई example? अगर हमने कोई example देनी हो. Yes, anyone? Yes, yes, Amarveer. Sir, I'm not very sure, but it can be like condition in which we can write if the number is greater than 5. Then for false, and then it would go iterate the loop, and for true if the number is not greater. एक एग्जांपल जो हम मैक्सिमम बार करते हैं दैट इज द एग्जांपल ऑफ इवन ऑड नंबर टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड. ठीक है, ये लॉजिक हो गया. दूसरा हो गया जैसे हम चेक करते हैं दैट इज द पर्सन इज अडल्ट और नॉट, ही इज एबल टू वोट और नॉट. तो सिंपल कंडीशन इज इफ द एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 वी से द पर्सन कैन वोट. Else part, the person, if the age is not greater than 18, we say the person cannot vote. So these are the few of the examples of if else, जिसमें true block भी होगा और false block भी होगा. And I think this you are familiar with, जैसे C में पढ़ा है किसी ने या Java language पढ़ी है तो उसमें भी same ही है. ठीक है जी. So this is the example where we are checking at whether the number is less than 100 or not. तो अगर number less than 100 है तो पहले वाला पार्ट चलेगा ट्रू ब्लॉक, अगर नंबर लेस देन 100 नहीं है तो सेकंड ब्लॉक चलेगा, दैट इज द फॉल्स ब्लॉक. नाउ नेक्स्ट इज द नेस्टेड इफ एल्स. सो नेस्टेड मींस इफ विद इन ए इफ. ठीक है, ये हमने इफ विद इन ए इफ इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी. इस तरह का हमने फ्लो चार्ट डिस्कस किया था. कहां पे? जब हमने बिगेस्ट ऑफ 3 नंबर्स फाइंड आउट किया था. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तो पहले आउटर लेवल पे एक कंडीशन होती है, फिर एक इनर लेवल पे कंडीशन होती है. ठीक है जी. तो अगर आउटर लेवल पे कंडीशन ट्रू होगी तो तभी ये इनर वाली कंडीशन ट्रू होगी. यू सी इसका फ्लो कैसे हो रहा है कि टेस्ट कंडीशन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ट्रू एंड फॉल्स है.
तो ये वाली कंडीशन जो कंडीशन नंबर 2 है ये तभी चेक होगी अगर कंडीशन नंबर 1 ट्रू होगी, तभी ये कंट्रोल यहां पे आएगा। क्लियर? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस nested if, means if within if. nested if का simple meaning है एक if के अंदर we have another if. So you can see with the help of an example also here, that is जैसे यहाँ पे हमने ये चेक कंडीशन लगाई है, एक नंबर हमने इनपुट करवा लिया यहाँ पे इस एग्जांपल में, we have asked the user to input a number, फिर उसके अंदर हमने क्या किया, नंबर को चेक किया whether the number is greater than equal to 0, और फिर उसके अंदर हमने चेक किया कि अगर नंबर जो है वो इक्वल टू 0 है तो 0 प्रिंट कर दे, और अगर एल्स वाला केस हुआ तो वी हैव सेट द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकली आउटर लेवल पे ये कंडीशन लगी हुई है कि नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर ये ट्रू होगा तो फिर कंट्रोल सेकंड इफ कंडीशन पे आएगा कि वो चेक करेगा कि नंबर 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो 0 वाली कंडीशन है और ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन है, दिस इज दी नेस्टेड कंडीशन है, दिस इज। यस गुणवीर, क्लियर है ये आपको? यस सर। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली ए कंडीशन ऑफ इफ विद इन ए इफ। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हमने लूपिंग में भी ये कंसेप्ट यूज करते हैं, लूप विद इन ए लूप, एंड सिमिलरली वी हैव ए टॉपिक ऑफ इफ विद इन ए इफ। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट वी हैव बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ लूपिंग। गुणवीर बता सकते हैं लूपिंग का कंसेप्ट हम कहां पे यूज करते हैं? सही है सर, अगर बार बार किसी चीज को कोड को एग्जीक्यूट करना है तो यस यस, जैसे फॉर लूप्स वगैरह हो गए। हाँ, वेयर वी हैव रेपिटेटिव स्टेप्स ना, जहां पे हमें नीड है स्टेप्स को रिपीट करना बार बार। जैसे हम टेबल बना रहे हैं तो 2 का टेबल बना रहे हैं, 2 1 द 2 2 2 2 द 4 2 2 3 द 6 2 2 2 4 द 8, सो लाइक मींस वी आर रिपीटिंग सर्टेन स्टेप्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो उस केस में हम लूपिंग का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, हमारे पास 2 मेजर लूप्स हैं, एक व्हाइल लूप है, एक फॉर लूप है। ठीक है, वैसे हमारे सिलेबस में सिर्फ फॉर लूप ही है, बट आई डोंट थिंक कि हमें फॉर लूप के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, दैट्स नॉट डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द व्हाइल लूप। व्हाइल लूप और फॉर लूप के अंदर एक मेजर डिफरेंस है, कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है? सो नाउ वी हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। हाँ जी, कोई भी बता दे, महक, अमरवीर, फॉर और व्हाइल स्टेटमेंट में डिफरेंस। यस महक, यस यस बता दो। हाँ सर, हम व्हाइल लूप तब यूज करते हैं जब हमें कोई कंडीशन गिवन हो, और फॉर लूप तब यूज करते हैं जब हमें कोई रेंज। हाँ सही है आपका आंसर। थोड़ा सा मैं इसको और इलेबोरेट कर देता हूँ, दैट इज बेसिकली फॉर लूप का हम यूज वहां पे करते हैं वेयर वी नो दी कि ये लूप कितनी बार चलेगी, 15 बार चलेगी, 20 बार चलेगी, 30 बार चलेगी, वेयर वी नो हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी रिपीटेड। और जो महक ने बताया दैट इज व्हाइल, जिसमें हमें ये नहीं पता कि ये कितनी बार चलेगी, क्लियर, बट वी नो द कंडीशन कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। सो अगर बेस्ड ऑन कंडीशन लूप लगानी है तो व्हाइल लूप का यूज करना है, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स के ऊपर यूज करना है तो फॉर लूप का यूज करना है। बट ये नहीं है कि जहां पे फॉर लूप लगती है वहां पे व्हाइल भी लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम स्टेप्स के लिए व्हाइल लूप का यूज करना चाहते हैं तो ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वहां पे हम व्हाइल को यूज नहीं कर सकते, बट दोनों का थोड़ा आइडिया हमें क्लियर होना चाहिए। Like here you can see, here is the example of a while loop. तो while loop में क्या है, look at the flow chart first. सबसे पहले क्या होगा, control will come into the while loop. तो while loop में आप इसमें syntax में देख सकते हो, सबसे पहले क्या आती है, condition आती है सबसे पहले। तो सबसे पहले condition चेक होगी, अगर condition true है तो body of the while loop will be executed. Clear? And this loop will continue till the condition is true, and when the control will come out of this loop when the condition is false. तो एग्जांपल दी हुई है इधर, जैसे x की वैल्यू 1 है तो दैट इज बेसिकली इस स्टेप को हम क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू 1। अगर मैंने इस स्टेप को नाम बताना हो, दिस यू में कॉल इट एज इनिशियलाइजेशन। हमने x वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है विद ए वैल्यू 1। ठीक है जी,
तो फिर इसके बाद कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन 4, यस, तो क्या हो जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा और x की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी एंड दिस टैब विल कीप ऑन गोइंग टिल द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो मींस 1 से लेके 4 तक ये प्रिंट हो जाएगा। दिस वाज अबाउट द व्हाइल लूप। सो नेक्स्ट कंडीशन इसमें क्या बताया हुआ है इस स्लाइड में कि व्हाइल लूप के साथ हम एल्स का भी यूज कर सकते हैं और whenever a else part is used in a loop तो पहले लूप पूरी एग्जॉस्ट होगी उसके बाद हमेशा else part एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जैसे इस while लूप के अंदर else का यूज किया हुआ है तो ये else पार्ट पे कंट्रोल कब आएगा, जब ये लूप पूरी रन हो जाएगी उसके बाद else वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एंड this is the same sort of a example based on the while loop. Now next है हमारे पास for loop. So look at the syntax of the for loop. तो सबसे पहले हमारे पास for कीवर्ड है, फिर ये हमारे पास वेरिएबल है val. इस वेरिएबल को क्या हम बोलते हैं, दिस वेरिएबल इज कॉल्ड द कंट्रोल वेरिएबल, जो बेसिकली सारी लूप को कंट्रोल करता है। अगर हम प्रीवियस लूप की बात करें while लूप, तो इस लूप में जो x वेरिएबल है ये कंट्रोल वेरिएबल भी है। क्लियर, तो ये कंट्रोल वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर होना दैट्स इज इंपॉर्टेंट। नाउ इस फॉर लूप के अंदर एक हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल है, फिर इन सीक्वेंस मीन सीक्वेंस डिसाइड करेगा कि ये लूप कहां से शुरू होगी और कहां पे जाके लूप टर्मिनेट होगी। एंड देन विद इन दिस ब्लॉक द स्टेटमेंट्स रेफर्स टू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, तो यस गुनवीर आप बताओगे ये रेंज फंक्शन क्या करेगा यहाँ पे, रेंज 3,5 इसका क्या मीनिंग है, रेंज 3,5 वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सर 3 से लेके 4 तक की रेंज प्रिंट करेगा। वेरी गुड, मतलब 3 4। So Gunveer is the student who has joined at the end, I think Jasmine के बाद इसने क्लास ज्वाइन की है। So वेरी गुड। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो 5 होता है 5 इज बेसिकली नो दी जो अपर बाउंड होता है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द रेंज फंक्शन, मींस वो एक्सक्लूड हो जाता है। तो ओनली 3 एंड 4 विल बी द पार्ट ऑफ दिस रेंज फंक्शन। ठीक है जी, सो 3 एंड 4 विल बी द पार्ट ऑफ दिस, और 3 से ये लूप शुरू होगी और 4 पे जाके ये टर्मिनेट हो जाएगी, एंड ओनली 3 एंड 4 विल गेट प्रिंटेड ओवर हियर। हाँ जी, हाँ जी, यस। ओ बेटा एक कैमरा ऑन कर लो, जस नवदीप। ठीक है जी, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ इस लूप को कोई मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है? वेरी वेल, दैट इज नो, कौन करेगा इसको एक्सप्लेन? यस जैस्मीन, आप करो एक्सप्लेन इस लूप को। जैस्मिन कर सकते हो एक्सप्लेन इसको? सॉरी वेट फॉर व्हाइल, दैट इज हाँ जी, हाँ जी, यस यू कैन स्टार्ट नाउ। यस नवदीप आप करोगे? यस नवदीप इज रेडी। यस नवदीप आप करो एक्सप्लेन, शाबाश। Sir, in this 5 is the starting value and 3 is ending value, and -1 is the gap between starting and ending value. So output will be 5 and 4. नहीं 5 आ जाएगी, 5 के बाद 4 क्यों आएगा? 5 के बाद तो 6 आना चाहिए।
नहीं सर, क्योंकि सर उसमें एंडिंग वैल्यू 5 है, 3 है और लास्ट में सर -1 है ना, हाँ इसलिए। अच्छा, तो ये इसमें 3 भी नहीं प्रिंट हो रहा है, व्हाई 3 इज नॉट प्रिंटेड? जैसे ये 5 पे सर शुरू हो रहा है, 3 पे क्योंकि खत्म हो रहा है, तो 3 क्यों नहीं प्रिंट हो रहा? सर ये बाय डिफॉल्ट होता है सर, जो स्टॉप वैल्यू थी वो नहीं प्रिंट होती। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी जो हमने डिस्कस किया था पॉइंट मींस 3 विल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, जो अपर बाउंड होगा इसका दैट विल बी एक्सक्लूडेड। सो गुड आंसर बाय नवदीप, वेरी गुड। ठीक है, नाउ मूविंग टू दी, ठीक है, फॉर लूप विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन इज सिमिलरली। ये आ गई हमारे पास एल्स। तो ये एल्स क्या है, जब ये ऊपर वाली लूप पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी तो उसके बाद ये एल्स वाला पार्ट मैंने अभी आपको बताया दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये एल्स वाला जो पार्ट है दैट यू विल नॉट फाइंड इन सी प्लस प्लस में, ये नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, बिकॉज नो द एल्स पार्ट इज नॉट इन मोस्ट ऑफ दोज लूप्स आर यूज्ड ओवर देयर। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेस्टेड लूप। सो नेस्टेड लूप इज बेसिकली लूप विद इन ए लूप। ठीक है जी, सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हियर, आई विल टेक, कौन बताएगा इसको, कौन एक्सप्लेन करेगा? यस जैस्मिन, आप ट्राई करोगे? जैस्मिन, Yes, sir. हाँ, प्रोग्राम भी गिवन है, उसकी आउटपुट भी गिवन है आपके सामने, यू हैव टू जस्ट शो कि ये इसकी आउटपुट ऐसे क्यों आ रही है। Sir, first it will check for I in range 1,3 and then it will come in the J loop and then it will execute the whole J loop and then it will again go to the I loop. तो थोड़ी आउटपुट एक्सप्लेन कर सकते हो, ये आउटपुट ऐसी क्यों आ रही है, व्हाई दिस सॉर्ट ऑफ आउटपुट इज कमिंग ऑन? सो यस महक, आप इसको कर सकते हो एक्सप्लेन? यस सर, सबसे पहले जो फर्स्ट लूप है फॉर आई इन रेंज 1,3, उधर से उसने 1 और 2 वैल्यू लेनी है और सेकंड वाली लूप से उसने 1 से 10 तक वैल्यूज लेनी है। वेरी, तो सबसे पहले फिर वो जो k की वैल्यू होगी दैट वो इज द 1 फंडामेंटल into j। पॉइंट कि हमने ये डिस्कस करना है कि पहली लूप कितनी बार चलेगी, दूसरी लूप कितनी बार चलेगी। तो पहली लूप जो है उसमें वैल्यूज जो यूज होंगी 1 and 2 यूज होंगी सिर्फ, बिकॉज 3 इज द अपर लिमिट दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। सिमिलरली इन द इनर लूप लाइक महक हैज सेड, ये 1 से लेके 10 तक चलेगी। तो पहले इसकी वैल्यू 1 के लिए 10 बार चलेगी, फिर इसकी 2 वैल्यू के लिए 10 बार चलेगी, तो टोटली ये इनर लूप 20 बार चलेगी। हाँ यस महक, यस। सर फिर जो k की वैल्यू आएगी वो फर्स्टली i से j को मल्टीप्लाई करेगी, जिसमें i 1 लेंगे पहले हम, उसके लिए वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, की वैल्यू 2 आके वो i into j का दूसरी लाइन प्रिंट करेगा। यस वेरी गुड। तो मींस ये जो इंटरनल लूप है पहली i की एक वैल्यू के लिए चलेगी, फिर दूसरी वैल्यू जो 2 है उसके लिए चलेगी। तो 1 से जब 1 10 तक मल्टीप्लाई होगा तो ये आउटपुट आ जाएगी। जब ये इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी आउटर लूप में, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 into पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, एंड यू विल गेट ये 2 का टेबल डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ। So very important that you are able to bifurcate this concept. ठीक है, और लूपिंग पे बेस्ड पे कौन कौन से तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको फाइनल एग्जाम में? एक तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, दूसरा है आपको जो पैटर्न होते हैं, पैटर्न, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, ठीक है, उसके क्वेश्चन आ सकते हैं आपको बेस्ड ऑन लूपिंग कंसेप्ट। और फाइनल एग्जाम की कोई डेट पता है आप लोगों को, कब से शुरू होने हैं फाइनल एग्जाम, कब शुरू होने हैं हम लोग? सो 15 जनवरी के बाद कभी भी शुरू हो सकते हैं। 15 जनवरी के बाद मींस बाय दी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आपकी +2 शुरू हो जाएगी। फरवरी के फर्स्ट वीक से आप लोगों की +2 शुरू हो जाएगी। सो गेट रेडी कि जनवरी में आप लोगों की +1 खत्म हो जाएगी। ठीक है जी,
सो 15 जनवरी के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, दैट विल बी थोड़े दिनों में डिसाइड होके वो आपको पता चल जाएगा. सो नाउ प्रिपेयर फॉर योर फाइनल एग्जाम आल्सो. ये ना कि इसके बाद आप छुट्टियों में चले जाना 10-12 दिन की, कि कोई बात नहीं सर हमारा अभी प्री बोर्ड हो गया, अब रेस्ट कर लें थोड़ी देर. सो डोंट टेक ए रेस्ट. Now the next we have jump statements. So basically 3 jumping statements are there in Python. C++ में 2 ही होती हैं, break and continue. इसके अंदर एक additional है, that is pass statement. So we will also look at the use of this pass statement. तो सबसे पहले है हमारे पास break statement. So who will define the break? अभी तक जिसने participate नहीं किया, तरुणजोत. Yes, Tarunjot, are you there? Yes, sir. हाँ तरुणजोत, थोड़ा सा बता दो, मैं आपको स्लाइड भी दिखा देता हूँ, मेरे को ये थोड़ा सा ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में समझा लो थोड़ा सा क्या है. तो ये लूप को टर्मिनेट करती है. यस यस. तो बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है, इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप. व्हेनेवर द ब्रेक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, the control is transferred from the current block of statements. ये जो current block है फॉर का, इसमें से कंट्रोल को बाहर निकाल देगी. और ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो हमेशा किसी ना किसी कंडीशन के साथ आएगी. बिना कंडीशन के आप ब्रेक का यूज नहीं कर सकते. देयर शुड बी सम कंडीशन wherever you are going to make use of the break statement. ठीक है जी. तो इसमें सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है, वैल्यू एक कंट्रोल वेरिएबल है. इसमें वैल्यू की फर्स्ट वैल्यू होगी s. तो s जो है वो i के साथ कंपेयर होगा, तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि s की वैल्यू i नहीं है, तो s प्रिंट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट टाइम t की वैल्यू पिक होगी t, तो t विल बी कंपेयर्ड विद i, सो t इज नॉट इक्वल टू i. सो ये इफ स्टेटमेंट जो है वो नहीं चलेगी. इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इसमें सिर्फ ट्रू ब्लॉक ही है, इसमें फॉल्स ब्लॉक तो है ही नहीं. तो कंट्रोल इससे बाहर आके प्रिंट फिर से टी हो जाएगा. ठीक है जी. अब नेक्स्ट टाइम इस सीक्वेंस में नेक्स्ट वैल्यू है r, सो r विल बी कंपेयर्ड विद i, तो r दिस इज अगेन r इज नॉट इक्वल टू i, तो ब्रेक जो है वो नहीं चलेगी एंड r विल बी प्रिंटेड. नेक्स्ट टाइम इस सीक्वेंस में नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है i, सो i विल बी कंपेयर्ड विद i, सो दिस इज ट्रू, सो ब्रेक विल बी एग्जीक्यूटेड and control will be transferred from the current block of statements. So whenever the break is encountered, so control is transferred from the current block of statements. Now, और अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट है, my humble request is you pick up the code from this PPT and try to run this code on the Jupyter notebook पे आप लोग साथ साथ में आप इसको एग्जीक्यूट करके देख लो. Now next is the continue statement. So who will take the lead in explaining the continue statement? Yes, अमरवीर की ड्यूटी लगाते हैं. अमरवीर you take the lead and explain this continue. So I think Amarveer is not. Yes, yes. Continue statement basically it returns the control from the beginning of the while loop, like it rejects all the remaining statements that were in the current iteration of the loop, and it again takes you back to the first step of the loop. Yes, yes. To the top. So who will basically refresh this thing? That's Mac is. Yes, Mac, आप मेरी आवाज सुन रही है मेरी? ये जो कोड दिया हुआ ना, ये कोड इस कोड से मेरे को एक्सप्लेन करके दो कि ये कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करेगी. एक्सप्लेन दिस कोड. सर जो फर्स्टली वैल्यू है वो INIT से वो वैल्यू लेगा, और अगर वैल्यू आएगा तो वो कंटिन्यू करके नेक्स्ट वैल्यू पुट करेगा.
यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास आएगा वैल्यू आई आएगी इसकी, तो आई ये प्रिंट नहीं करेगा और कंटिन्यू करके दूसरी वाली स्टेटमेंट एन पे चला जाएगा। तो फिर होता क्या एन है, वाली होता क्या है, प्रिंट एन करके फिर से वो आई आएगा। गुड गुड गुड। तो बेसिकली क्या है कि बेसिकली कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम होता है व्हेनेवर द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, अनलाइक द ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, कंट्रोल को बाहर निकाल देता है, और कंटिन्यू क्या करता है कि कंटिन्यू के बाद जो स्टेटमेंट है उसको स्किप करके इट ट्रांसफर द कंट्रोल टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक। तो कंट्रोल को वो टॉप ऑफ द ब्लॉक पे ले जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो जहां जहां पे इसकी वैल्यू आई है दैट विल नॉट गेट प्रिंटेड, रेस्ट ऑल द वैल्यूज in this particular expression or sequence I and IT will get printed, means NOT print हो जाएगा। So I hope that yes Navdeep clear है ये, continue। Yes sir। Good। Now the next is the past statement। So who will take the question को, कौन ये हैंडल करेगा इस क्वेश्चन को? Yes हर्षिता। हर्षिता may not be ready। और कौन एक्सप्लेन करेगा? यस तरुणजोत करोगे एक्सप्लेन इसको? So I will have to take the lead। So basically ये statement किस लिए है? The past statement is this statement does nothing। So basically ये क्या करती है? That is does nothing। इसका भी एक रोल है does nothing का। Clear? What is this? What is the role of this is? It can be used when a statement is required syntactically but the program requires no action। तो जहां पे हमें something we need to put something but कुछ उसका इफेक्टिव स्टेप्स ना होता हो, कोई उसका रिजल्ट ना आए, मींस दैट शुड बी सॉर्ट ऑफ ए डमी वैल्यू। जैसे ये वाइल स्टेटमेंट है, हमने वाइल लूप यहां पे लगाई हुई है, तो मैं बोल रहा हूं कि वाइल में कुछ भी एक्टिविटी नहीं मैं करना चाहता, तो मैं उसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, उसके अंदर पास स्टेटमेंट डाल दी मैंने उसके अंदर। जैसे ये फंक्शन है, तो आपको पता है फंक्शन के अंदर कम से कम फंक्शन की बॉडी के अंदर कोई ना कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए आपने उसके अंदर क्या डाल दिया, आपने उसके अंदर पास स्टेटमेंट डाल दी। क्लियर? सो जैसे ये बेस्ट एग्जांपल इज दिस वन। ठीक है, अगर आप इफ एल्स का यूज करना चाहते हो, तो जब ये आई की वैल्यू आई आ जाए, सो यू डू नॉट वांट एनीथिंग एनी ऑपरेशन टू बी डन, तो उसमें आपने कौन सी वैल्यू डाल दी, पास वैल्यू। तो ये एक तो ये इसका सिंटैक्स करेक्ट हो जाएगा, सिंटैक्टिकली दिस इज करेक्ट बिकॉज इसमें ये पास स्टेटमेंट ट्रू ब्लॉक का काम कर रही है और प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स ब्लॉक का काम कर रही है। ठीक है जी। तो दिस इज की पास स्टेटमेंट से इसकी एग्जीक्यूशन से होगा कुछ नहीं, बट वेयर एवर वी कैन मेक इट्स यूज फॉर सिंटैक्टिकली, तो वहां पे आपको ये एग्जाम्पल में क्या हो गया कि इफ स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था, इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे दो ब्लॉक्स होंगे, वन ब्लॉक इज कॉल्ड ट्रू ब्लॉक एंड द अदर ब्लॉक इज कॉल्ड फॉल्स ब्लॉक। तो ट्रू ब्लॉक की रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने पास स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है यहाँ। सो नाउ दिस इज वी आर डन विद a very important topic, that is the control statements। So now the another, अच्छा हर्षिता आप बताओ कोई टॉपिक आपका कोई डिफिकल्ट लग रहा है आपको टॉपिक? And the next topic in the pipeline is the list। ठीक है जी। So the next topic is list। This is the list we have। So lists are basically the it is a collection of items where each item has its own index value। तो index value से हम इसको access करते हैं। On the top side you can say these are the positive index values
एंड ऑन द बॉटम साइड अगर हमने लिस्ट को राइट साइड से एक्सेस करना है तो उसकी सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू होगी -1, फिर -2, -3, -4 एंड -5। तो लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो होमोजीनियस वैल्यू होती हैं या दोज वैल्यूज कैन बी हेट्रोजीनियस? कौन आंसर करेगा इसका? Yes, anyone? The values of the list are homogeneous or elements of the list can be heterogeneous. बता दो, कोई एक तुक्का लगा दो, गलत हो जाएगा उसको ठीक कर देंगे। हाँ जी, हेट्रोजीनियस सर। Yes, heterogeneous. Heterogeneous is the right answer. और homogeneous elements के लिए हम लिस्ट की जगह क्या यूज करते हैं? तो लिस्ट की जगह हम यूज करेंगे एरेज। एरेज प्रेजेंटली एरेज आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट यू शुड बी क्लियर कि अगर हमें होमोजीनियस एलिमेंट चाहिए, मींस अगर हमें लिस्ट के अंदर सारे के सारे इंटीजर वैल्यू चाहिए या फ्लोट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम एरेज यूज करेंगे। और अगर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का यूज है तो वेयर वी विल मेक यूज ऑफ द लिस्ट। ठीक है, so creating the list, for this we use these square brackets, clear, and these are the 3 examples of list and you can see the elements are heterogeneous। जैसे list 1 में इंग्लिश स्ट्रिंग है, हिंदी स्ट्रिंग है और ये दो वैल्यू जो हैं दे आर इंटीजर टाइप। ठीक है जी, so this is the way of how we can access the elements of a list based on the index value। लिस्ट को हम एक्सेस करते हैं based on the index value। traversing through the list, तो लिस्ट को हम ट्रेवर्स कर रहे हैं यूजिंग ए लूप। ठीक है, जैसे मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता हूं, सो आई विल एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। तो इसके लिए मैंने क्या किया, लूप का कंसेप्ट यूज किया है। दैट इज हाउ आई कैन ट्रेवर्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट। स्लाइसिंग, सो व्हाट इज स्लाइसिंग? कौन बताएगा थोड़ा स्लाइसिंग के बारे में? यस गुणवीर, आपको जो भी पता है स्लाइसिंग के बारे में बता दो इस स्लाइड से। सर एक लिस्ट के जैसे हमने 2 हिस्से करने होते हैं, पहले एक वैल्यू दे देनी है, उससे वो शुरू होगा और जो दूसरी वैल्यू है उस तक वो हिस्सा उठा लेगा और प्रिंट कर देगा। ठीक है, स्लाइस मींस तो सो बेसिकली वी हैव टू कट आउट और टेकिंग पार्ट्स ऑफ ए लिस्ट, दैट इज व्हाट वी मेंट बाय द स्लाइसिंग। जैसे ये 3 स्लाइसेस किए हुए हैं इसके, और जो लास्ट स्लाइस है उसके अंदर ना तो हमने स्टार्टिंग वैल्यू मेंशन की है ना ही हमने एंडिंग वैल्यू मेंशन की है। सो दिस विल इंक्लूड द होल ऑफ द लिस्ट। ठीक है, जो सेकंड लास्ट लिस्ट है इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 3 है, तो 3 कौन सी वैल्यू? थर्ड वैल्यू इज बेसिकली इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होती है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 3 से लेके इसका एंड मेंशन नहीं किया हुआ, तो 3 में से लेके अप टू एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वी हैव। और जो फर्स्ट है उसके अंदर यू नो द 3 इज द अपर लिमिट, तो अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, तो 0, 1 एंड 2 विल गेट प्रिंटेड। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ स्लाइसेस। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज updating and manipulating the list. So who will take the lead? Yes, हर्षिता बताओगे क्या है ये updating the list? Yes, sir. Yes, yes. करो एक्सप्लेन इसको। सर इसे रीड आउट करना है? नहीं, जैसे भी आप इसको एक्सप्लेन करो, अब रीड आउट करने का तो टाइम नहीं है, जैसे आपको इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अपडेटिंग दी एंड मैनिपुलेटिंग दी लिस्ट, रीड कर दो, रीड कर दो। अपडेटिंग या मैनिपुलेटिंग में we can update single or multiple elements of list by giving slice on the left hand side of the assignment operator. तो बेसिकली अपडेटिंग और मैनिपुलेटिंग में क्या है हमारे पास? सिंपल सी बात है, अपडेटिंग और मैनिपुलेशन होगी बेस्ड ऑन द इंडेक्स वैल्यू।
ठीक है, इंडेक्स वैल्यू के बेस पे हम वैल्यू को, जो वैल्यूज हैं ऑफ द लिस्ट, वी कैन मेक अपडेशंस इन दैट, ठीक है, यूजिंग दी बाय एक्सेसिंग दी इंडेक्स वैल्यूज ऑफ द लिस्ट। तो अभी जो हमने कंसेप्ट यूज किया है स्लाइसिंग का, जैसे तो अगर मैं मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं, ठीक है, बट यहाँ पे सिंगल वैल्यू ही अपडेट होगी, बिकॉज 2 3 से अपर लिमिट तो इंक्लूड होगी नहीं, ओनली द इंडेक्स वैल्यू विद द 2 विल गेट अपडेटेड। नाउ नेक्स्ट इज different operations on a list, how to add a value into a list. So far that we have, अगर हमने ऐड करना है लिस्ट में, तो append फंक्शन क्या करता है, as you can see the word meaning of append हमेशा ऑपरेशन अप्लाई करता है at the end of any object, किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर हमने लास्ट पे कोई ऑपरेशन लगाना है, तो फॉर दैट वी यूज दी append ऑपरेशन। तो append ऑपरेशन यहाँ पे क्या करेगा, लिस्ट के लास्ट पे एलिमेंट को ऐड कर देगा। जैसे मैंने ये 3 ऐड किया, तो 3 विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है जी। दूसरा है हमारे पास एक एक्सटेंड मेथड है। एक्सटेंड मेथड क्या करता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू ऐड, एक तो है इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स एट ए टाइम इन द इंडेक्स, इन द लिस्ट, सॉरी। तो अपेंड से हम एक ही वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंड से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अपेंड एंड द एक्सटेंड मेथड्स, ठीक है जी। सो ऐड ए आइटम टू द लिस्ट, दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ ए अपेंड फंक्शन। ऐड टू लिस्ट, तो अगर हमारे पास दो सिमिलर लिस्ट हैं, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, सो वी कैन ऐड द लिस्ट, ठीक है। तो सिमिलर नहीं रिक्वायर्ड है इसमें, ये जो ऐड ऑपरेशन है, ये बेसिकली कंकैटिनेशन ऑपरेशन है। एडिशन उस तरह से नहीं हो रही जैसे मैंने भी सोच लिया इसको एडिशन होगी, ये एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, ऐड नहीं होंगे, ये कंकैटिनेट हो जाएंगे। मींस फर्स्ट लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट उसके साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, कंकैटिनेट हो जाएगी उसके साथ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज delete an item. So similarly, how we can delete a item in the from the list using the del function. तो del मेथड से क्या होगा, del हमारे पास स्टेटमेंट है और साथ में हमें क्या देनी पड़ेगी, इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो जैसे ये हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट है 1 2 3, इसमें इंडेक्स वैल्यू 1 किसकी है, 2 की इंडेक्स वैल्यू है, ये 2 की 1 की इंडेक्स वैल्यू 0 है, इसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है, इसकी इंडेक्स वैल्यू 3 की 2 है। So this will delete the second element, that is this one. So this is about the del operation. These are the basic operations that we apply on the list. ये कौन से हमारे पास है, फर्स्ट है कि अगर हमने दो लिस्ट को कंकैटिनेट करना है तो प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे, अगर हमने एक लिस्ट को मल्टीपल बार शो करना है तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करेंगे। जितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे एक लिस्ट को उस नंबर के साथ, उतनी बार वो लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी या रिपीट हो जाएगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू रिपीट। एक है इसके ऊपर हम मेंबरशिप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इन इज ए मेंबरशिप ऑपरेशन। तो चेक करने के लिए कि 3 इज द पार्ट ऑफ दिस लिस्ट, तो अगर 3 लिस्ट में होगा तो ट्रू हो जाएगा, अगर 3 लिस्ट में नहीं होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। सिमिलरली वी हैव इटरेशन। तो इटरेशन में ये लिस्ट क्या काम कर रही है, कोई बता सकता है? ये जो फॉर लूप है इसके अंदर ये लिस्ट क्या काम कर रही है? यस एनीवन? कोई भी बता दो। अभी हमने जैसे x की वैल्यू, हाँ x की जो वैल्यू है हाँ वैसे जैसे 1 से स्टार्ट होगा वो और आखिरी तक जाएगा। अब वो 0 पे है, अभी x तो पहले वो 4 प्रिंट करेगा, फिर अगली वैल्यू आएगी वो 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा। तो गुणवीर जैसे आपने बताया, मेरे कहने का मतलब था कि ये जो लिस्ट है यहाँ पे बेसिकली अगर हम इसको फॉर के सिंटैक्स के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे लिस्ट एक सीक्वेंस का काम कर रही है। दिस इज ए सीक्वेंस बेसिकली, क्लियर? तो जो सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू है 4 है, फिर सेकंड है 2 है, फिर थर्ड है 3 है। सो
These are the few of the functions which are related with the list. You just go through these functions, और जहां जहां पे doubt है, try to run those functions. Next is there is a program based on the list. ये प्रोग्राम मेरे को लगता है हमारे प्रैक्टिकल में भी है. बेसिकली इसमें क्या किया हुआ है, फर्स्ट वी हैव ए, फर्स्ट स्टेटमेंट में है हमारे पास ब्लैंक लिस्ट है हमारे पास. फिर उसमें हमने उसके अंदर हमने एक नंबर इनपुट किया कि कितने नंबर हमें चाहिए इस लिस्ट के अंदर. फिर हमने क्या किया है, एक लूप लगा के उस लिस्ट को पॉपुलेट किया है. वी हैव फिल्ड द वैल्यूज ऑफ द लिस्ट यूजिंग द अपेंड मेथड. अपेंड मेथड से उस लिस्ट को पॉपुलेट किया है. जो भी आप वैल्यू आप डालोगे वो उसमें डलती जाएंगी और ये लूप n तक चलेगी. ठीक है जी. फिर उसके ऊपर हमने क्या किया, लिस्ट को हमने सॉर्ट कर दिया. तो सॉर्ट करने से क्या हो जाएगा, हमारे पास सारे एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे लिस्ट में. और अगर आप लास्ट एलिमेंट को पिक करोगे तो लास्ट एलिमेंट विल बी द लार्जेस्ट एलिमेंट. और अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को पिक करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा इन द लिस्ट, स्मॉलेस्ट. सो द फर्स्ट एलिमेंट विल बी स्मॉलेस्ट. तो इस तरह से आप स्मॉलेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड फंक्शन बताया हुआ है. सो वी विल नॉट पुट टू मच टाइम ऑन द यूजर डिफाइंड फंक्शन बिकॉज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस. बट हमने करके किया हुआ है हमने क्लास के अंदर ये सारा. रेस्ट यू कैन स्किप आल्सो. इफ यू वांट टू डू यू कैन डू आल्सो, व्हाटएवर यू वांट, टेक योर डिसीजन. ठीक है जी. सो सम नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, दैट इज अगेन ए यूजर डिफाइंड फंक्शन है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए. सो देयर विल बी नो यूजर डिफाइंड फंक्शन इन योर एग्जाम्स, बट स्टिल इफ यू वांट टू गो थ्रू यू कैन गो थ्रू. ये लीनियर सर्च है. कोई बता सकता है लीनियर सर्च क्या होती है? एनीवन हु वांट टू से समथिंग ऑन लीनियर सर्च, कोई बता सकता है? और लीनियर सर्च कैसे होती है, कोई तो बता दो. अमरवीर, यस अमरवीर. सर जब हर एक एलिमेंट को विजिट किया जाता है और उसमें सर्च किया जाता है, फाइंड किया जाता है, मैच किया जाता है कंडीशन को मैच. तो फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक जब सारे एलिमेंट्स को हम सर्च कर रहे हैं, दैट इज लीनियर सर्च. मींस पहले पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. दैट इज हाउ वी प्रोसीड इन द लीनियर सर्च. तो मोटा मोटा ये आइडिया क्लियर होना चाहिए सभी को. नेक्स्ट इज देयर इज सम प्रोग्राम ऑन लिस्ट. So that is, we have finished the topic with the list. Now in the next class we will focus on dictionary and MySQL. ठीक है जी. So I think the time is, अभी टाइम कितना हुआ है, टाइम हुआ है 10 बजे हैं और 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं और 10 मिनट बाद जो 2 टॉपिक रह गए हमारे पास, MySQL and dictionary, we will go through that. So take a rest and come back at 10:10. Okay, sir.